Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, हाँ स्टार्ट करें. तो अल्ट्रासोनिक्स, right? This was a next unit which we have already started last lecture, right? Last week. So in this ultrasonics, you have studied what is the meaning of ultrasonic waves. Definitely, the ultrasonic waves are the mechanical waves which have the frequency higher than 20,000 hertz, right? And as like ultrasonic waves, we have infrasonic waves also. Okay? And in this unit, we will focus our lecture in ultrasound. ओके, और इससे पहले जो था उसे हमने ऑडिबल साउंड पर फोकस किया था. ओके, these are audible for few species, and we can have some information of those species, right? And we have studied the properties of ultrasonic waves, like the ultrasonic waves have very high energy. They can transmit the energy from one place to another place. When they move through a liquid, some bubbles are originated in that liquid, like in the water, right? Because water starts boiling at some positions from where the ultrasonic wave is traveling. Okay, so these are few properties, like ultrasonic waves when they travel from one place to some far place, the energy is not decreased appreciably, and that's why they can be used in many applications. Okay, so whenever you have some difficulty in understanding any line or what I have said, just interrupt me. Okay, then we landed upon the production of ultrasonic waves. There are two methods. One method is relying on magnetic fields, and this is known as magnetostriction method, right? And another method is piezoelectric method. So magnetostriction effect is used in the first, and piezoelectric effect is used in the second. So these are only two methods we are talking about. Okay? Excuse me, sir. Yes. Can you just switch to the previous slide for 1 second? 1 minute. So these are few applications, and I think this slide. Yes, sir. Oh. So, सर हमने प्रॉपर्टीज sir, वाली स्लाइड पिछली बार नहीं करी थी, शायद हमें यहीं से स्टार्ट करनी थी. ओ ऐसा है क्या? ओके. yes, sir. सॉरी. यस सर, सिर्फ इंट्रोडक्शन सा हुआ था बस पिछली क्लास. Yes, sir. Okay. So properties of ultrasonic waves are they have very high energy. Why? Because they have very high frequency. और frequency बहुत ज़्यादा है, means their wavelength is very less. ठीक? और इसलिए those waves can travel a long distance without losing a appreciable amount of energy. ठीक, बहुत लंबी डिस्टेंसेस तक ये ट्रेवल कर सकती हैं. साउंड वेव बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकती, उसकी एनर्जी बहुत जल्दी लॉस करती, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत धीरे धीरे लॉस करती है, इसलिए काफ़ी दूर तक जा सकती हैं, और इसलिए इनकी एप्लीकेशन हो सकती है किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में, उनकी डिस्टेंस फाइंड करने में. ठीक, अच्छा, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं, एंड एवरी मैकेनिकल वेव इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब्ड. ठीक, तो ये भी इसी तरह से ये भी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं किसी ऑब्जेक्ट से, रिफ्रैक्ट हो सकती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती हैं, और एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं. ठीक, ये जब किसी लिक्विड में से होके पास करती हैं तो कुछ पोजिशंस पर जहाँ से होके वो पास कर रही हैं उस पाथ पर प्रेशर चेंजेस होते हैं बहुत तेजी से, और प्रेशर चेंज होने पर, और जब ये रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, तो कुछ स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो जाती हैं, जैसे कि हमने एक सब अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था. तो स्टैंडिंग वेव्स जब प्रोड्यूस होती हैं तो वहाँ पे कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे रेयर फ्रिक्शन होता है, कंटिन्यूस रेयर फ्रिक्शन होता है, और वहाँ पर प्रेशर कम होता है. और आई डोंट नो कि तुम लोगों को पता है या नहीं कि जब किसी लिक्विड का प्रेशर कम करते हैं, ठीक, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होने लगता है, और इसी तरह से जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से हायर बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होता है. मींस हायर प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, लोअर प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है. ठीक, ये ऐसा वाटर के लिए है.
तो जब ये वाटर में से होके पास होती हैं, जब ये वाटर में से होके पास होती हैं तो बॉयल होने लगता है अलग अलग पोजिशंस पे वाटर, और बबल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक, ये क्योंकि डिफ्रैक्ट हो सकती हैं तो इनसे एकॉस्टिक ग्रेटिंग बन सकती है। ग्रेटिंग का जो भी यूजेस हैं उन ग्रेटिंग की तरह से इसे यूज कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज कि डिफ्रैक्ट भी होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, हाई एनर्जी होती है, एनर्जी इनकी लॉस कम होता है एनर्जी में। ठीक है, एंड दीज हैव डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट्स इन द लिक्विड। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, sir. Yes, sir. due to these properties they can be used in many applications like imaging। ठीक, इमेजिंग क्योंकि रिफ्लेक्ट हो सकती है। डिटेक्शन अगेन, ये क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आ सकती हैं तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमने कितनी देर पहले इन्हें पास किया था और कितनी देर के बाद हमने दोबारा से इन्हें गेन किया, दोबारा से हमारे पास लौटी। ठीक, और स्पीड अगर हमें इनकी पता हो तो हम मालूम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई है या नहीं सामने, और है तो कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक, तो ये जो 3 एप्लीकेशंस हैं, इमेजिंग, डिटेक्शन एंड नेविगेशन, दीज आर on the basis of reflection property of ultrasonic waves। ओके, और इनके बाद हमें मालूम करना है कि ये जनरेट कैसे करें। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज हमें मालूम पड़ गई। एप्लीकेशंस को हम एट द लास्ट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। इवन इनका डिटेक्शन कैसे करें, ये जो वेव्स हैं, इन वेव्स का डिटेक्शन कैसे करें, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। अब पहले हम आते हैं कि इन्हें प्रोड्यूस कैसे किया जाए। ठीक, तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले देखा, इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। वन मेथड इज magnetostriction method and another is piezoelectric method. One by one we'll discuss both of them, right? So in the very firstly, the magnetostriction method, it is based on the principle of magnetostriction effect। और इसमें है क्या, अगर हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पता है, 10+2 में पढ़ा होगा, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। Yes, sir. Yes, sir. Paramagnetic. Yes, sir. तो एक कुछ एग्जांपल्स, Diamagnetic. यस, कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, लाइक आयरन, निकल। ठीक, तो अगर हम कोई रॉड लें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई हो, आयरन की या निकल की, और उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें या फिर उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, वो जो रॉड है, रॉड अपनी लेंथ में या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी या फिर वो इंक्रीज कर जाएगी उसकी लेंथ। ठीक, और ये जो लेंथ का चेंज होना है, कॉन्ट्रैक्शन और एलोंगेशन है उस रॉड का, वो केवल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस बात पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के रॉड की लेंथ का कॉन्ट्रैक्ट होना या फिर एलोंगेट होना in the presence of magnetic field is known as magnetostriction effect। ठीक है, और अगर ऐसा है तो अगर हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा दें तो मैग्नेटिक फील्ड कभी इंक्रीज हो, कभी डाउन हो जाए, फिर इंक्रीज हो, फिर डाउन हो जाए, तो वो जो लेंथ है फेरोमैग्नेटिक रॉड की, वो बड़ी तेजी से चेंज होने लगेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। ठीक, एंड इन दिस वे जो उसके एंड्स हैं, एंड्स के कांटेक्ट में जो भी एयर है, वहां पर भी सेम फ्रीक्वेंसी की मैकेनिकल वेव जनरेट हो जाएगी। एंड इफ दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, देन दिस रॉड कैन जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द एयर फ्रॉम बोथ ऑफ इट्स एंड्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब करना क्या है इसके लिए, हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है जिससे कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, और उसके लिए हमें अल्टरनेटिंग करंट चाहिए। और हमारे पास डीसी करंट है सपोज, तो उसे अल्टरनेटिंग करंट बनाने का तरीका हमने पहली यूनिट में पढ़ा था ऑसिलेशंस में। हमारे पास एलसी सर्किट होना चाहिए। तो अगर एलसी सर्किट का यूज करके एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करें जिसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स के इक्वल हो, एंड देन दैट करंट इज फेड इनटू अ कॉइल in which this ferromagnetic rod is put, then this ferromagnetic rod will be a source of ultrasonic waves। ठीक है, और इसी का यही हमने यूज किया। यस, दिस इज द फिगर। ओके, यस, दिस।
तो यहाँ हमने एक ये हमारा सर्किट है, इसमें ए बी, दिस इज द फेरोमैग्नेटिक रॉड, और यहाँ दिस इज कैपेसिटर whose capacitance can be changed, variable capacitor, and there is another inductor, ये कॉइल है, और इसे हम फेड करते हैं एक डीसी चार्ज से, और ये अपने अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एंड सी, this can generate a frequency f which is equal to 1 by 2 pi under root of L1 C1, where C1 is the capacitance of this capacitor and L1 is the inductance of this inductor. ठीक है, और इसे एक ट्रांजिस्टर के थ्रू फीडबैक पहुंचाते हैं, और ये फीडबैक, दिस L2 इज फीडबैक इंडक्टर और फीडबैक कॉइल, और इसका यूज ये है कि इसके होने से जो एम्पलीट्यूड है इस करंट का, दैट इंक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स। ठीक, तो एसी का एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए हम इस फीडबैक लूप का यूज करते हैं, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए ये ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि ट्रांजिस्टर तुमने कुछ लोगों ने बताया कि 10+2 में पढ़ा नहीं है, और बाय चांस इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज होगा, तो ये जो सर्किट है इसे एज इट इज अगर याद रख सको तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या किया हमने इस सर्किट, दोबारा स्टार्टिंग से बता दीजिए डायग्राम। ओके, इसमें अब अच्छे, इससे पहले हमने क्या किया था, हमें यह मालूम पड़ गया था कि हमें एक अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, और वो करंट किसी कॉइल में से होके जा रही हो जिसके अंदर फेरोमैग्नेटिक रॉड रखी हो, यही तो करना था। तो इसके लिए हमने एक एलसी सर्किट बनाया, टैंक सर्किट बनाया ये, ठीक, और इसके कैपेसिटर्स और इंडक्टेंस को इस तरह से चूज किया जिससे कि जो फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करे, अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी, वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के आसपास की हो। ठीक, अच्छा, अब केवल उस फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा, इसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ इस फेरोमैग्नेटिक रॉड की कितनी बढ़ेगी या कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा रखना है। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट इस एम्पलीट्यूड को भी बढ़ा देता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट विद द हेल्प ऑफ दिस फीडबैक लूप और फीडबैक कॉइल। ठीक, सो L2 is a feedback coil which helps increasing the amplitude of alternating current, और ये दोनों लूप मिलकर एक प्राइमरी कॉइल बनाते हैं जिसके अंदर हम ये फेरोमैग्नेटिक रॉड पुट कर देते हैं। क्योंकि ये तुमने पढ़ा नहीं है, इसलिए ये जो सर्किट है इसे एज इट इज याद रखो। ठीक है, क्योंकि ये सर्किट काफी बार यूज होगा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में भी यूज होगा और पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज होगा। ठीक है, so this is tank circuit, the frequency of alternating current is this। ठीक, फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से चूज कर लेंगे, एल और सी की वैल्यूज चूज करके, और एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए फीडबैक कॉइल का यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब क्योंकि इसमें इस फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी फ्रीक्वेंसी से चेंज होने लगेगा, और ये जो रॉड है उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगी इसकी लेंथ। तो ये वाला एंड और ये एंड, ये दोनों वाइब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ पहले से ही हमने बहुत ज्यादा रखी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसमें एलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, और इसके दोनों तरफ से एयर में अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होकर प्रोपगेट करने लगेंगे। ठीक, दोनों तरफ से अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होंगे। ठीक, क्योंकि ये रॉड है, रॉड बहुत लंबी है, और लेंथ में जो चेंजेस आएंगे, परसेंटेज चेंज वो भी बहुत ज्यादा होंगे, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है ये काफी पावरफुल होती है इस मेथड से जो निकलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे फ्रीक्वेंसी हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, सो दिस वाज द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स, एंड दीज वेव्स आर वेरी पावरफुल ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस वेरी लॉन्ग फेरोमैग्नेटिक रॉड। ठीक, इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक, फायदे क्या हैं, क्योंकि पावरफुल होती है, और प्रॉब्लम क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एक और बात कि हम कोई भी फ्रीक्वेंसी रखें, उस फ्रीक्वेंसी से ये रॉड को हमें वाइब्रेट कराना है, एंड एम्पलीट्यूड हमें बहुत ज्यादा रखना है। तो उसका तरीका है रेजोनेंस, कि इस रॉड को हम उसी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट कराने की कोशिश करें जो कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और किसी भी रॉड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1/2L। L is the length of the rod, and
अंडर रूट ऑफ y ओवर रो. y इज द यंग्स मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. ठीक, तो फॉर ए गिवन लेंथ एंड फॉर ए गिवन मटेरियल द फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड. ठीक, तो हमें जो L और C इनकी वैल्यूज चूज करनी होंगी वो इस तरह से चूज करनी होंगी कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू F और मल्टीपल्स ऑफ F. ठीक, तो हम एक सिंगल मल्टीपल ऑफ F में फ्रीक्वेंसीज रखते हैं, L और C को इस तरह से चूज कर लेते हैं. ये क्लियर है? तो हमारे पास अब दो वैल्यूज हैं. पहला है फ्रीक्वेंसी बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट LC सर्किट एंड अनदर इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड. और दोनों को हमें बराबर रखना है. कैपेसिटर्स को धीरे धीरे हम चेंज करते जाएंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी तक लाएंगे जिससे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए और पावरफुल अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट हो जाए. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the advantages of this method is ये बहुत सिंपल है. हमें एक रॉड चाहिए और कुछ इंडक्टर्स चाहिए, L और C चाहिए. ठीक है, और ये बहुत पावरफुल वेव्स को जनरेट कर सकती है. प्रॉब्लम ये है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती. द अपर लिमिट ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव, अपर लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज 3 मेगाहर्ट्ज. ठीक, अगेन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. मटेरियल का टेम्परेचर चेंज होने पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसलिए. ठीक है, और इसमें क्योंकि रॉड का यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी हो रही है. और हमने सबसे पहले ये भी पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी सॉलिड रॉड को रख दें तो उसमें एडी करंट्स जनरेट होते हैं, तो इसमें एनर्जी का लॉस भी बहुत ज्यादा होता है. सो दीज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस. ठीक है, अच्छा, ये तो था हमारा पहला मेथड. इन द सेकंड मेथड वी यूज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक, so piezoelectric effect is what? There are few materials in which if you apply pressure or if you apply the stress in some direction, then in another direction the potential difference is created. Charges are separated. ठीक, और उनमें से एक एग्जांपल है क्वार्ट्ज. तो क्वार्ट्ज का नाम तुमने बहुत बार सुन लिया. ठीक, क्वार्ट्ज एक पीजोइलेक्ट्रिक मेथड, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है. ठीक, उससे पहले तुमने पढ़ा था कि क्वार्ट्ज इज अ बायरफ्रिंजेंट मटेरियल आल्सो. ठीक, तो इसमें पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर क्वार्ट्ज का कोई क्रिस्टल लें, नेचुरल क्रिस्टल लें, और उसके किसी एक डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर दें तो किसी दूसरी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है. और इवन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है. इस वाले इफेक्ट को तो बोलते हैं पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसका जो इनवर्स है उसे बोलते हैं इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इनवर्स क्या है कि अगर हम किसी एक डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दें तो दूसरी वाली डायरेक्शन के बीच में प्रेशर जनरेट हो जाता है. मींस उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है या डिक्रीज कर जाती है. तो यहाँ पर अगेन पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करेंगे फॉर जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. ठीक है, और मेथड वही होगा. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करानी है जो कि चेंज हो रही है अल्ट्रासोनिक स्पीड से, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से. ठीक, और उसके लिए हमें एक टैंक सर्किट चाहिए, जैसा कि हमने पहले यूज किया था. लेकिन पहले तो हमने उसका मैग्नेटिक इफेक्ट यूज किया था अल्टरनेटिंग करंट का, लेकिन अब इसे ट्रांसफार्मर के जरिए किसी दूसरे तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस के इसके पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करेंगे. ठीक है, तो हम सर्किट पर आए. अगर पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज क्लियर, देन इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. All clear. ओके, तो पहले बात करते हैं कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल है कैसा. ठीक, एक नेचुरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल हेक्सागोनल टाइप का होता है और उसमें जो सेंट्रल एक्सिस है दैट इज नोन एज जेड एक्सिस. ठीक, अगेन इसके ये जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक, सेंट्रल लाइन जो इसे हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे और कॉर्नर से होके पास हो रही हो, दैट इज वन एक्सिस. और दूसरी लाइन कि जो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर रही हो, ठीक, दैट इज अनदर एक्सिस. सो देयर आर 3 एक्सिस. वन इज जेड एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस. अनदर इज एक्स एक्सिस जो कि कॉर्नर से होके पास होती है और सेंटर से होके पास होती है. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस. एंड जो फेज को बाइसेक्ट करती है दैट इज नोन एज वाई एक्सिस. तो अगर इसका इसे ऊपर से देखें, टॉप से व्यू करें, तो दिस इज द व्यू एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, और किसी भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल को जब हम पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसे किसी एक डायरेक्शन में कट करना पड़ता है. ठीक, तो अगर हमने उसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर
कट करके स्लाइसेस बनाई हैं, देन दैट टाइप ऑफ स्लाइस इज नोन एज जेड कट क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करके स्लाइस बनाई है, देन दिस इज नोन एज वाई कट क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कट्स इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वन इज एक्स कट एंड अनदर इज वाई कट। ठीक, एक फिगर और है मेरे पास ये, तो अगर ये परपेंडिकुलर रखा होता तो दिस इज एक्स कट slice of quartz crystal and this is y cut slice of quartz crystal. Is that clear? x cut और y cut, और ये जरूरी है, अगर हम x cut और y cut नहीं बनाएंगे तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल को हम पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये थे हमारे x cut और y cut, और ये x cut और y cut हैं ये डिफरेंट मेथड के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल x cut is used for longitudinal ultrasonic waves and y cut is used for transverse ultrasonic waves। और क्योंकि साउंड वेव, ये मैकेनिकल वेव जो भी एयर में है वो लॉन्गिट्यूडनल ही होती हैं, तो x कट का यूज ज्यादा होता है एंड y कट इज सेल्डम यूज। ठीक, ये बहुत कम यूज होता है y कट। ओके, सो वी विल यूज x कट क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन आवर एप्लीकेशन। तो अब करना क्या है, अब आते हैं हम लोग सर्किट के लिए। ठीक, सो दिस वाज द ओरिजिनल सर्किट, हमने रोटेट करके रख दिया। ठीक है, जो पहले मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट में जो सर्किट था वही है ये। दिस इज एलसी सर्किट और टैंक सर्किट, दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ क्या कहते हैं इसे, ट्रांजिस्टर, यस ट्रांजिस्टर, एंड दिस इज द फीडबैक कॉइल। ठीक, और ये अगेन इसीलिए है जिससे कि एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा हो सके। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये कॉइल और ये कॉइल इन दोनों के सेंटर पर एक फेरोमैग्नेटिक रॉड रख दी थी, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था जो कि चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज नहीं करना, तो अब हम करेंगे ऐसा कि इन दोनों को प्राइमरी कॉइल बना देंगे और ट्रांसफार्मर के थ्रू इसे एक थर्ड सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसमिट करेंगे इस अल्टरनेटिंग करंट को। और इससे होगा क्या कि इसके जो दोनों एंड हैं उन दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा होगा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कॉइल। ठीक, दिस सर्किट, तो वो जो चेंज हो रहा होगा पोटेंशियल, उसे अगर हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स पर अप्लाई कर दें तो इस प्लेट्स के दोनों प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम फ्रीक्वेंसी से चेंज होने लगेगा। ठीक, और इसके अंदर एक क्वार्ट्ज की एक्स कट स्लाइस पुट कर देते हैं और उससे वो जो स्लाइस है, स्लाइस के दोनों एंड्स पर, दोनों सरफेसेस पर पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी तेजी से चेंज होता है और इसके जो दूसरे एंड्स हैं वहां पर प्रेशर डिफरेंस आ जाता है और ये वाइब्रेट करने लगता है। ठीक, और वाइब्रेशन के साथ इसके साथ जो भी अटैच्ड है एटमॉस्फेयर, वहां पर अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होकर एटमॉस्फेयर में पास होने लगती है। ठीक है, सो दिस वाज द मेथड फॉर जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स यूजिंग पीजोइलेक्ट्रिक मेथड। ठीक, अच्छा, अगेन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है काम, जैसे हमारा मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में नहीं हुआ था। यहाँ पर ये जो स्लाइस है इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो हमें एक हाई क्या कहते हैं इसे, हाई एनर्जी अल्ट्रासोनिक वेव बनाने के लिए हमें इसकी फ्रीक्वेंसी, टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक, ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखनी पड़ेगी या फिर उसके मल्टीपल में रखनी पड़ेगी। And the frequency or natural frequency of any material is given by this equation, जो कि हमें पहले भी मालूम कर लिया था। Y is the Young's modulus and rho is the density। अब देखना जरा, L is the thickness or length, thickness of the crystal। रॉड के केस में L बहुत ज्यादा था, अगर ज्यादा था that's why the frequency by magnetostriction effect was very less। ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज से आगे नहीं बढ़ पाए थे। But in case of piezoelectric method, the length or width or thickness of this crystal is very less। एक बहुत पतली सी स्लाइस होती है, and that's why frequency is very high। Okay, and how much high? That is this 500 megahertz। ठीक, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पीजोइलेक्ट्रिक मेथड के थ्रू जो जनरेट होती हैं, that can be as high as 500 megahertz। ठीक, ठीक है सर। हाँ, अगर रॉड के केस में लेंथ थोड़ी ले लो उसकी, फिर अगर हम रॉड छोटी ले लेंगे तो उसमें जो लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर सपोज 1 सेंटीमीटर लेंथ ले ली हमने,
और उसके लेंथ में 10% का चेंज आना है, तो कितना आना है? 1 mm का चेंज आना है, तो एम्पलीट्यूड इज 1 mm। और अगर 1 मीटर की लें, 1 मीटर में 10% इज 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड इज वेरी हाई। ठीक, तो इसलिए हमें वहां पर लेंथ हमें बहुत ज्यादा लेनी पड़ती है और इसीलिए फ्रीक्वेंसी कम होती है। ओके। ठीक है, तो यहाँ क्या है? अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम हो गई, अभी अभी देखा कि एम्पलीट्यूड कम है तो इसका भी एम्पलीट्यूड कम होगा, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती। एनर्जी तो उसी की मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट में जो एनर्जी होती है उतनी एनर्जी इस पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू जनरेट नहीं हो पाती। ठीक, एनर्जी कम होती है। अगेन प्रॉब्लम है कि ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये एक्सपेंसिव होता है, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है इस सेटअप की। ठीक, अगेन प्राइस ज़्यादा होता है वो तो अलग बात है, लेकिन उसे शेप करना, उसे कट करना, एग्जैक्टली एक्स कट बनाना, ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर ये बनवा भी लिया और हमारे पास आ गया, उसके बाद उसे डील करना पड़ता है बहुत डेलिकेटली, अदरवाइज वो ब्रेक हो जाता है। हमारे जो लैब है, लैब में जो अल्ट्रासोनिक वेव वाला एक्सपेरिमेंट है, उसे बड़े डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ ऑफ द मेथड्स, piezoelectric method and magnetostriction method. Are those clear? Yes sir. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एजुकेशनल लर्निंग, हु इज दिस एजुकेशनल लर्निंग? एजुकेशनल लर्निंग कौन है? अटेंडेंस नहीं हो पाएगी ऐसे? अरे कहाँ है? Where is educational learning? Yes, tell me. एक्चुअली सर आज मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया था तो मेरे ब्रदर ने नेम चेंज कर लिया, इसलिए मैं भूल गई नेम चेंज करना। पहले मैं मोबाइल से होती थी ना ऐड, इसलिए अच्छा, तो एक काम किया करो, ध्यान रखा करो, क्योंकि जो भी अटेंडेंस आएगी जूम वाली वो इसी नेम से आएगी, आई थिंक इसी नेम से आएगी जिस नेम से तुम यहाँ पे दिख रहे हो। ठीक, और तुम्हारा ओरिजिनल नेम आ नहीं पाएगा, तो उसमें एब्सेंट ना हो जाओ। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है, इसके ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी यू शुड बी देयर विद योर ओन नेम। ओके, अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और किशन, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। किशन? यस सर। ओके, तो हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। ठीक, सो वी हैव come to know about the properties of ultrasonic waves, about the production method of ultrasonic waves, and then we come to know about how these ultrasonic waves are detected. ये जो अभी न्यूमेरिकल निकला, न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और तो डिटेक्ट कैसे करें? तो डिटेक्ट करने का तरीका एक वही पीजोइलेक्ट्रिक मेथड भी हो सकता था, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो एंड वी अप्लाई सम स्ट्रेस ऑन एनी डायरेक्शन ओवर इट, then in another direction there is a generation of potential difference. तो अगर अल्ट्रासोनिक वेव हमारे पास है और उसे किसी पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर मूव कराएं, इंसिडेंट कराएं, तो उसमें प्रेशर का चेंजेस आएंगे, और वो प्रेशर के चेंजेस किस फ्रीक्वेंसी से आएंगे? उसी फ्रीक्वेंसी से जो कि फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव की है, और सेम फ्रीक्वेंसी की पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और अगर हम उस पोटेंशियल को मेजर कर लें और उसे एम्पलीफाई करके ये देखें कि कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटिंग अल्ट्रासोनिक वेव। सो दिस इज द मेथड, और दिस मेथड इज नोन एज पीजोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर मेथड। सो वी हैव पीजोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लैम्डा कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हमारे पास देयर आर फ्यू मेथड्स। वन इज नूट्स ट्यूब मेथड। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं? ट्यूब मेथड में हमारे पास एक ट्यूब होती है ग्लास की, ठीक है, और उसके अंदर कुछ पाउडर फैला हुआ होता है, पाउडर स्प्रेड कर देते हैं उसमें, और कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि हम उस ट्यूब की लेंथ को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन। ठीक, और उसके दूसरे एंड से अल्ट्रासोनिक वेव को अंदर आने देते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव अंदर आती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटती है और अपने खुद से ही इंटरफेयर करती है और स्टेशनरी वेव जनरेट करती है। ठीक, अब स्टेशनरी वेव में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर कोई वाइब्रेशन नहीं होता, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अच्छा, अगेन जो वेवलेंथ है अल्ट्रासोनिक वेव की, उसका मल्टीपल ह्यू होना चाहिए ये लेंथ ऑफ द ट्यूब, और इसीलिए इस पिस्टन का यूज किया गया है। तो पिस्टन को हम
मूव करा के कुछ ऐसी पोजीशन पे रखते हैं जिससे कि यहाँ पर स्टेशनरी वेव जनरेट हो जाए। और जनरेट हुई या नहीं हुई ये कैसे पता पड़ेगा? जहां पर नोड बना, नोड आई थिंक दिस पॉइंट इज नोन एज नोड, ठीक। तो नोड पर क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत कम है तो वहां पर जो पाउडर है, पाउडर जैसा था वैसा ही रखा रहता है। जहाँ पे एंटी नोड है, जहां पर वाइब्रेशन ज्यादा है, वहां से क्योंकि इसमें एनर्जी भी है, वहां के पाउडर को ये मूव करा देता है लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो कुछ पोजिशंस ऐसी बनती हैं जहां पे पाउडर है और कुछ पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जहां पे पाउडर नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ इज 1 वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो और इस वेवलेंथ में हमारे पास ये पाइलअप्स जो पाइप के ये पाउडर के आए वो 2 आए। सो द डिस्टेंस फ्रॉम 1 पाइलअप ऑफ पाउडर टू द अनदर एडजेसेंट पाइलअप ऑफ पाउडर इज λ/2। तो अगर हम ये डिस्टेंस सिंपली मेजर कर लें स्केल से एंड वी मल्टीप्लाई this length by 2 and we get the wavelength of ultrasonic wave. ठीक है? Is that clear? Yes, sir. Okay. Okay. Next is the sensitive flame method. यहाँ पर भी ये स्टेशनरी वेव जनरेट कराते हैं हम उसी अल्ट्रासोनिक वेव से और एक फ्लेम को मूव कराते हैं स्पेस में। तो जब ये फ्लेम इस पोजीशन पर एंटीनोड की पोजीशन पे आएगी तो क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं बड़ी तेजी से तो ये डिफ्लेक्ट करेगी बहुत ज़्यादा। और जब यहाँ पर आएगी नोड की पोजीशन पे क्योंकि यहाँ वाइब्रेशंस नहीं है तो इसमें डिफ्लेक्शंस बहुत कम होंगे, ठीक है। अगेन मूव कराएंगे, यहाँ डिफ्लेक्शन बढ़ जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे, यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे। तो अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मेजर कर लें या फिर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मेजर कर लें, दैट इज λ/2, ठीक है। इसी तरह से एक मेथड और है इसी को यूज करते हुए। हाँ, देखो यहाँ पर स्टेशनरी वेव जनरेट हुई थी अल्ट्रासोनिक वेव की और यहाँ एंटी नोड बना था, यहाँ नोड बना था। नोड आर द पॉइंट्स एट विच द वाइब्रेशंस हैव 0 एम्पलीट्यूड एंड एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस आर हाईएस्ट, मैक्सिमम। तो अगर हम एक फ्लेम ले लें, ठीक, उस फ्लेम को मूव कराएं इसके साथ साथ, तो जब ये एंटीनोड पर पहुंचेंगे हम वहां पे डिफ्लेक्शंस बहुत ज्यादा होंगे। उसके बाद आगे पहुंच के नोड पे पहुंचेंगे, वहां डिफ्लेक्शंस इस लॉ में, ठीक है, फ्लेम में बहुत कम होंगे। तो इस तरह से मूव कराते हुए हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर फ्लेम के डिफ्लेक्शंस कम हैं और जहां पर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हैं। तो अगर हम किन्हीं भी 2 एक जैसे पॉइंट्स की डिस्टेंस मेजर कर लें कि किन पॉइंट्स पर कौन से एडजेसेंट प्लेसेस पर इसके डिफ्लेक्शंस 0 थे या बहुत कम थे, that distance between those points is λ/2 and lambda is the wavelength of ultrasonic wave, ठीक है। Yes sir. अच्छा, सर ये मेथड ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं होता होगा? हाँ, इसकी एक्यूरेसी कम होती है क्योंकि हमें अपनी आंखों से देखना होता है कि फ्लेम डिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, और ऊपर से हमारी आंखों के साथ साथ हमारी नाक भी हमारे साथ ही होती है, ठीक। तो एयर का जो चेंजेस है कभी भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि अगर हमारे सामने कोई फ्लेम हो और हमारे पास भी हो, हमारे माउथ के पास हो, हाँ, नोज के पास हो और वो डिफ्लेक्ट ना करे, तो ये एक्यूरेसी इसकी कम होती है, ठीक है। यस सर। अच्छा, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करें तो देखते हैं। दिस इज थर्मल डिटेक्शन मेथड, और इस थर्मल डिटेक्शन में हम एक ऐसा वायर लेते हैं, ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। और जब भी कोई अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट हुई या फिर वो स्टेशनरी वेव बनाई, स्टेशनरी वेव में जो एंटीनोड्स होंगे वहां पे टेम्परेचर में वेरिएशन होगा बहुत ज्यादा, और जहां नोड होगा वहां पे वेरिएशन कम होगा क्योंकि वाइब्रेशन नहीं हो रहे। तो अगर हम एक ऐसा वायर ले लें जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो फॉर द टेम्परेचर, देन वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस वेरी इजीली। और इसके लिए हम प्लेटिनम वायर लेते हैं। प्लेटिनम का वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आने पर भी उसका रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से चेंज होता है। तो इसके लिए हम एक प्लेटिनम वायर लेते हैं, और यही जो पहले वाली स्लाइड में ये जो स्टेशनरी वेव बनी थी इसमें उस प्लेटिनम वायर को मूव कराते हैं। तो जब वो वायर यहाँ आएगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यहाँ आएगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर आएगा जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, उस प्लेटिनम वायर पे डिपेंड करेगा, तो बहुत एक्यूरेट होगा ये।
ठीक है, इस तरह से उस वायर को मूव कराते जाएंगे, रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा और हम पोजीशंस देख लेंगे दो, जहां पे रेजिस्टेंस बहुत सबसे ज्यादा हो या फिर जहां पे रेजिस्टेंस सबसे कम हो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स इज λ/2। अब प्रॉब्लम बात यह है कि हम रेजिस्टेंस मेजर कैसे करें। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास कैलेंडर ग्रिफिथ मीटर ब्रिज इसका अरेंजमेंट होता है। ये तुमने 10+2 में पढ़ा होगा आई थिंक। नहीं सर, पढ़ा नहीं। बिल्कुल पढ़ा होगा 10+2 में। मीटर ब्रिज पढ़ा है सर। यस सर पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा है वो लोग एक बार देखें जाके कि होता क्या है। फिलहाल इस थ्योरी में पढ़ा है सर, पढ़ा है, पता है, मुझे पता है तो फिलहाल इस थ्योरी में अगर तुम भूल भी गए हो कैलेंडर ग्रिफिथ ब्रिज या मीटर ब्रिज कैसे वर्क करता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम्हें पता होना चाहिए हाँ मीटर ब्रिज कुछ होता है, उससे हम मालूम कर सकते हैं। जब भी यूज करोगे तब एक बार पढ़ लोगे, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, तो मीटर ब्रिज की हेल्प से रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है वो मालूम कर लेते हैं। ठीक, क्लियर है? यस तो जो पहला वाला मेथड था उसमें सेंसिटिव फ्लेम का यूज कर रहे थे। नेक्स्ट मेथड में हम एक प्लेटिनम वायर का यूज कर रहे हैं। उसका रेजिस्टेंस मेजर करना दैट इज अनदर टास्क, और वो हम मालूम कर लेंगे जैसे भी करना। ठीक, इस केस में हम कैलेंडर ग्रिफिथ ब्रिज से यूज करते हैं, वो मेजर करते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके यस सर। ओके। तो अच्छा, इनके बाद हम आगे चलते हैं एप्लीकेशंस पर। व्हाट आर द एप्लीकेशंस? तो अब हमारे पास देखो डिटेक्ट करने के तरीके हैं। हम फ्रीक्वेंसी भी डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की, हम उसकी वेवलेंथ भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा काम पूरा होता है। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। और एप्लीकेशंस के लिए हमने पहले ही बात की थी द प्रॉपर्टीज जो थी उन्हीं के बेसिस पे एप्लीकेशंस होंगी। ठीक, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू डिटेक्ट द फ्लॉज इन द मटेरियल। ठीक, जनरली जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके फ्लॉज, उसमें ट्रैक में कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, वो अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू ही वो मेजर किए जाते हैं, मालूम किए जाते हैं। और उसमें करते ऐसा है कि एक अल्ट्रासोनिक वेव उस मटेरियल के अंदर पुट कराते हैं, और ये लेंथ तो हमें पता है कितनी है, डिस्टेंस, थिकनेस उसकी मटेरियल की, या फिर वो ट्रैक था उसकी, और उसके अंदर वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, वो भी पता है। तो हमें पता होता है कि जब जाएगी ये वेव अंदर तो दूसरे वाले सरफेस से टकरा के कितनी देर में वापस आ जाएगी, उसे हम मेजर कर लेते हैं। और बाय चांस किसी आगे बढ़ते हुए किसी पॉइंट पर फ्लॉ आया या कोई क्रैक आया, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव उस क्रैक से टकराकर ही वापस आ जाती है। इसका मतलब वो जल्दी वापस आ जाती है। ठीक, एंड इफ दिस टाइम of detection of ultrasonic wave, reflected ultrasonic wave, is less than the usual time, then we come to know that there is a flaw inside the material. ठीक, और इसे हम इस तरह से मेजर करते हैं। एक हमारे पास एक CRO होता है। ठीक, वेव को जनरेट किया, वो यहाँ पर पीक के फॉर्म में आ जाता है, और कितनी देर के बाद वेव को दोबारा से डिटेक्ट किया, वो पीक के फॉर्म में कुछ देर के बाद आता है। तो हम ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, एंड एक्स एक्सिस इज द टाइम, और उस टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी से, तो यही एक्स एक्सिस हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। तो अगर दिस इज द डिस्टेंस, देन अकॉर्डिंग टू द डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव वी हैव टू पीक्स। तो ये वाली पीक थी, हमने जब इसे यहाँ से पास किया था, तो दूसरी वाली पीक है जब हमने इसे दोबारा से डिटेक्ट किया। एंड दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ थिकनेस ऑफ द मटेरियल और ट्रैक। अगेन सपोज यहाँ पे कोई क्रैक है, तो मटेरियल यहाँ पर हमने डिटेक्ट किया, यहाँ पर एक वेव आई, वो पीक आई, उसके बाद वेव गई, यहाँ से रखे वापस आ गई। डेफिनेटली दिस टाइम इज लेस देन द टाइम टेकन बाय दिस वेव, तो एक पीक सेंटर पे मिल जाएगी कहीं पर। ठीक, एंड दिस पीक दोबारा समझाना है ये वाला। अच्छा देखो, ये हमारा एक अल्ट्रासोनिक वेव का जनरेटर भी है और डिटेक्टर भी है, और ये वो मेटल है या फिर ये सिंपली रेलवे ट्रैक मान लेते हैं। ये सपोज दैट रेलवे ट्रैक। ठीक, तो यहाँ से जब हम अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करेंगे, वो पास होगी इस मटेरियल के अंदर होकर और दूसरे वाले सरफेस से टकरा के वापस आएगी, और इसे हम दोबारा से डिटेक्ट कर लेंगे। तो पहला वाला टाइम और बाद वाला टाइम, इन दोनों को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ टू पीक्स। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पीक एंड दिस पीक इज द थिकनेस ऑफ दिस ब्लॉब। ये तो बात सही है ना? ये बात तो क्लियर है? यस सर। अच्छा, सपोज यहाँ ये लीक प्रूफ नहीं है, उसमें क्रैक प्रूफ नहीं है, एक क्रैक है बीच में, आगे समझ। और वो उसकी डिस्टेंस d है। तो यहाँ से हमने जब उसे जनरेट किया, वो वाली पीक है यहाँ,
इससे टकरा के वापस आ गया, डेफिनेटली ये वाला टाइम कम होगा, वो वाली पीक है यहाँ, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होकर यहाँ से भी टकरा के वापस आएगा, डेफिनेटली वो कम होगा, तो एक छोटी सी पीक यहाँ पर भी मिली। सो दिस होल डिस्टेंस इज द थिकनेस ऑफ द ट्रैक एंड दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ क्रैक इन द ट्रैक। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लॉ डिटेक्शन में भी यूज करते हैं इसका, और इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक है, आई थिंक अगर मटेरियल साइंस पढ़ोगे तो इसका एक इसके बेस पर एक प्रैक्टिकल भी होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, इस वाले मेथड में? No, sir. नो सर। अच्छा, नेक्स्ट है ड्रिलिंग में। ड्रिलिंग, अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग भी होती है। कुछ मटेरियल जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं उनमें अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए करते क्या है, एक जो जनरेटर है अल्ट्रासोनिक वेव का, उसके साथ एक टिप अटैच कर देते हैं और एक स्लरी, किसी एक मटेरियल की स्लरी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करेंगे तो ये जो टिप है, ये वाली टिप की बेड, ये भी बड़ी तेजी से अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगी, और वो वाइब्रेशंस उस स्लरी में जाएंगे, और वो स्लरी धीरे धीरे इस हार्ड मटेरियल के पार्ट्स को अलग करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग भी होती है। ठीक है, अच्छा, देन सोल्डरिंग में भी इसका यूज होता है। ठीक, कुछ मटेरियल जैसे कॉपर में बहुत आसानी से सोल्डरिंग हो जाती है, लेड एंड टिन की। ठीक, लेकिन एल्यूमिनियम के वायर को सोल्डर करना आसान नहीं है। ठीक, तो एल्यूमिनियम के वायर को सोल्डर करने के लिए अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग भी की जा सकती है। तो उसके लिए सोल्डर मटेरियल और एल्यूमिनियम मटेरियल दोनों को साथ साथ पुट करते हैं। अल्ट्रासोनिक जो सोल्डर है उसके टिप को पास में लाते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, दोनों मेल्ट होकर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग होती है। ठीक, ऑफ दोज मटेरियल फॉर विच द नॉर्मल सोल्डरिंग इज नॉट पॉसिबल और डिफिकल्ट। और इसी तरह से अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, उस क्लीनिंग के लिए हम एक लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड में अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करा देते हैं, और जिस मटेरियल को हमें क्लीन करना होता है उस लिक्विड में डिप कर देते हैं। तो क्योंकि उस लिक्विड में बहुत तेजी से, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक, उनसे भी उन्हें भी क्लीन कर देता है वो वाटर। और इसका यूज जनरली केमिस्ट्री लैब्स में होता है। ठीक, रिसर्च में जनरली इसका यूज होता है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग का। ओके, सर सोल्डरिंग बता दीजिए। सोल्डरिंग में है, सोल्डरिंग में तो हम जनरली यही तो करते हैं, किसी एक मटेरियल को पिघलाया और दूसरे मटेरियल पे चिपका दिया। ठीक, जैसे लेड एंड टिन सोल्डर था, तुमने किया है कभी सोल्डर? देखा है ना, लोगों को देखा होगा सोल्डर करते हुए। देखा, हाँ जी सर देखा है। तो एक कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर पे सोल्डर करने का मतलब है दो चिपकाना होता है। तो पहले दोनों की टिनिंग करते हैं, दोनों वायर्स की टिनिंग का मतलब है कि एक सोल्डर लिया लेड एंड टिन का और उसके चारों तरफ चिपका दिया पिघला के। तो ये काम उसमें कॉपर वायर में तो आसान होता है, एल्यूमिनियम में आसान नहीं होता। और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जिनकी सोल्डरिंग आसान नहीं है। तो उसके लिए हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक लोकल पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक, उस अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू हम सोल्डरिंग मटेरियल और जो एल्यूमिनियम है या फिर जिस मटेरियल का सोल्डर कर रहे हैं उन दोनों को पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करके दोनों को एक साथ एक बना देते हैं। दैट्स ऑल। ठीक, इस तरह से वो मटेरियल जिसका सोल्डर करना था वो दोनों के साथ अटैच हो जाता है। ठीक, ये है अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग। ठीक है, यस सर। एंड अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, ये क्लियर था सबको या नहीं? यस सर। अच्छा, देन दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव जो कि वाइडली यूज होता है इन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक, सोनार। सो सोनार इज व्हाट? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, तो इसमें क्या है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। तो सपोज एक हमारी शिप है और वो किसी दूसरी एनिमी शिप को उसे डिटेक्ट करना है, या फिर वहां पे है भी कोई एनिमी शिप या नहीं, तो उसके लिए वो अपने चारों तरफ अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट कराती है और उसे पास होने देती है। और लिक्विड के अंदर उसकी स्पीड तो पता है हमें, और वहां वो जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसका वो डिटेक्टर भी उनके पास होता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव जब जाती है इस तरह से पास कराई, और जैसे ही कोई एनिमी शिप आता है वहां से टकरा के वापस भी आने लगती है, और वापस आने वाली जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसे डिटेक्ट करके हम टाइम मालूम कर लेते हैं, कितना टाइम लगा। तो उस टाइम में इस अल्ट्रासोनिक वेव ने कितनी डिस्टेंस कवर की, जितनी डिस्टेंस थी उसका डबल, 2d। सपोज डिस्टेंस बिटवीन दैट एनिमी शिप एंड आवर शिप इज d, देन अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट होने में
जब तक डिटेक्ट हुई तब तक उसने ट्वाइस ऑफ डी डिस्टेंस कवर की है, और ट्वाइस ऑफ डी डिस्टेंस कवर करने में सपोज उससे टाइम t लगा है, देन व्हाट इज d? दैट 2d इज ट्वाइस ऑफ d इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस हम मालूम कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इन द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द टाइम ऑफ डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सोनार। ठीक, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि सोनार हम ही यूज करते हैं, ये और भी स्पीसीज हैं वो यूज करते हैं। ठीक, ये बैट्स और फिशेज ये इसी तरह की टेक्निक का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं, कितनी देर के बाद टकरा के वापस आई उसे भी डिटेक्ट करती हैं हमारे कानों की तरह से। ठीक है, सो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, दीज आर फ्यू नॉर्मल एप्लीकेशंस। इसके बाद मेडिकल में भी इसकी एक एप्लीकेशन हो सकती है। सर क्लास का टाइम हो गया। ओह अरे ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है? नो सर। तो क्या चाहते हो, मैं 2-3 स्लाइड्स हैं उन्हें कंप्लीट करके कंप्लीट कर दूं या नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूं? वैसे तो प्रॉब्लम हो गई होगी तो मैं चलो नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सर। ओके 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 ठीक है, थैंक यू सर। तुम्हारे पास बुक है उसमें पढ़ना। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशंस होंगी। ठीक है, 2-3 एप्लीकेशंस और हैं, उनके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे ट्रांजिट करेंगे। ओके सर एक्सक्यूज मी सर, यस सर पिछले आप वीडियो लेक्चर्स और हाँ मैं अभी स्लाइड्स भेज दूं? हाँ मैं अभी हाँ स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा, वीडियो लेक्चर भी मैं डाल दूंगा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। ओके सर, ठीक है, थैंक यू टू थैंक यू सर। चलो ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर अगर ये चैप्टर आपके पास हो तो स्कैन करके डाल दीजिएगा क्लासरूम पर। ये मैंने डाल दिया होगा भूमिका? यस सर। नहीं डाला मैंने? नो सर नहीं डाला है सर नहीं डाला ये वाला शायद। ठीक है, तो मैं आज इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज शाम तक इसे ले लेना। ओके सर, थैंक थैंक यू सर। चलो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू।